सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। Yes, sir. Okay, so this is last class of unit 3, that is periodic table, and today we shall discuss only 2-3 points. We have already studied that in the periodic table, atomic and ionic radii decreases from left to right. From left to right in a period, atomic radii and ionic radii decreases with some exceptions. Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity increases. From top to bottom in a group of PT, atomic radius and ionic radius of ions having same charge increases. Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity decreases. Okay? Although we have some exceptions हैं इनमें, लेकिन जनरल ट्रेंड यही है। फिर हमने पढ़ा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटेलिक प्रॉपर्टी, ओके, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, reducing behavior increases down the group, but melting point, boiling point decreases. Basic character of metal oxides increases, that of non-metal oxides decreases. Reactivity of metals increases down the group, reactivity of non-metals decreases down the group. ध्यान है? Yes, sir. इतना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ओके। तो उसको आप पढ़ लीजिए और उसमें जो एक्सेप्शंस हैं उसको ध्यान रखिए और उसको प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके देख लेंगे ताकि हमें बार बार याद रहे। इसके बाद अब 2-3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारे सामने दिख रहा है आपको? Yes, sir. Anomalous properties of second period elements. फर्स्ट पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मालूम है आपको, उसका व्यवहार जानते हैं आप। उसके बाद सेकेंड पीरियड आया। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। तो नियन तो अपना एक क्लास है नोबल गैस का, उसको भी छोड़ दीजिए। ये जो लिथियम से फ्लोरीन है
ये ग्रुप 1 में है, ये 2 में है, ये 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये अपने अपने ग्रुप के टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट है। और सच क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं ग्रुप में सबके प्रॉपर्टी सिमिलर हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं आपको कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शो एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस मीन्स डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप प्रॉपर्टी। ये अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एनोमेलस बिहेवियर। आई बात समझ में? फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप मीन्स ग्रुप 1, 2 and 13 to 17 show different properties than the other elements of this group, and this is called anomalous behavior. Anomalous means something different, विचित्र, जो उम्मीद करते हैं उससे different। ठीक है? Means properties of lithium is different from the alkali metals. Properties of beryllium is different from alkaline earth metals. Properties of boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, all are different from properties of their group elements. Okay? First element of group 1, 2, 13 to 17 show different property than their group members. This is called, what is called? Anomalous behavior. Now the question is why? Why they show anomalous behavior? One example is given in your slide, that lithium and beryllium form covalent compounds. You know, alkali metals of group 1 and alkaline earth metals of group 2 form ionic compounds, but first member of the group lithium and beryllium form covalent compounds. This is anomaly. Now, what is the reason for this anomalous behavior? There are 5 reasons. First is a small size. These elements have very small size and large charge by radius ratio. A small charge के कारण इसका charge by radius ratio large होता है। और आप एक नया बात सीखिए आज। अभी तक आपने सीखा था कि property depends on electronic configuration. Elements having same electronic configuration may have similar properties, but आज जानिए आप एक नई बात, property largely depend on charge by radius ratio. जिसका charge by radius ratio same होगा उसका property similar होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का चार्ज बाय रेडियस रेशियो सबका लार्ज होता है अपने ग्रुप से, एबनॉर्मली लार्ज, इसलिए प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। फर्स्ट कॉज स्मॉल साइज, सेकेंड कॉज लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, थर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो पहला एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगा, सो दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ इज अब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिट। इन सभी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट हैं, तो आप जानते हो सेकेंड ऑर्बिट में डी नहीं होता, केवल एस और पी होता है। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और फ्लोरीन का 2s2 2p6 2p5।
All the elements have only two orbits, first and and second orbit has only s and p suborbit, no d suborbit. इसका क्या परिणाम हुआ? Result is that they cannot expand its octet. आपने octet का नाम सुना होगा. Every atom has tendency to keep 8 electrons in the Yes, sir. valence. It's true, but some elements may defy it. आप पढ़ेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं. तो कब ओबे नहीं करेंगे? जब उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे जिसमें अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाएंगे. पीरियड 2 के एलिमेंट के पास केवल s और p है, केवल 4 ऑर्बिटल हैं. कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें? मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? मैक्सिमम 8. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रहता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. दे कैनॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट. इनकी वैलेंसी लिमिट है. जबकि इनका जो बड़ा भाई सब है वो अपना ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर लेता है, उसमें डी रहता है ना. इसी का जो अगला भाई देखो ना, इसका जो अल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इस सब में है 3s2, 3p6 और 3d खाली है. 3d खाली है लेकिन है ना, इनमें d है ना, ये अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये हायर वैलेंसी शो कर सकते हैं. सो एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 can show valency 4 only. Other elements of this group can show higher valency. This is anomaly. Example आपके स्लाइड पर है बोरन और अल्युमिनियम का. बोरन can form BF4 minus only. Aluminum can form AlF6 minus. Aluminum can form AlF6 minus. Valency 6 is there. And fifth reason is this element of period 2 can form p-pi multiple bond. अब ये p-pi मल्टीपल बॉन्ड क्या है? मल्टीपल समझते हैं आप. मल्टीपल मीन्स मोर देन 1. सो एलिमेंट्स ऑफ पीरियड सेकेंड कैन फॉर्म मोर देन 1 बॉन्ड विथ ईच अदर और विथ अदर एटम्स. मोर देन 1 मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N. आपस में दूसरे के साथ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N. ये सब ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट कर सकते हैं. आपस में PP के ओवरलैप से मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं. तो जब 2 एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड बनता है तो पहला कहलाता है सिग्मा, दूसरा कहलाता है पाई. वही हुआ p-pi. मतलब p ऑर्बिटल के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बना सकते हैं. लार्जर एटम्स कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड. इसका इफेक्ट क्या होगा हम लोग अभी तक केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे. ठीक है. तो ध्यान दीजिए क्या 5 पॉइंट हुआ. एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू 5 रीजंस. क्या सब? पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो, चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, रेशियो इज हाई. Third, high electronegativity. Fourth, absence of d orbital.
they don't have d orbital. And fifth, they are able to form pi bond. अब तक ये निगेटिव था, चौथा में है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, दूसरे एलिमेंट नहीं बना पाएंगे। इतना डिफरेंस है पीरियड 2 के एलिमेंट में। क्या सब? फिर रिकॉल करो, दे हैव हाई चार्ज, स्मॉल साइज, हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो, high electronegativity, absence of d orbital, and ability to form p pi multiple bond. These are the property which first element of group 1, 2, and 13 to 17 have, and so they show anomalous behavior. Any question? ये स्क्रीन कौन गंदा कर रहा है रे? पता नहीं मेरे पर क्यों हो रहा है। ये सब नहीं करो भाई। नेक्स्ट टॉपिक इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप स्क्रीन में देखो, लिथियम, मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल दिख रहे हैं ना? डायगोनल समझते हैं ना? Yes, sir. कॉर्नर टू कॉर्नर। बेरिलियम, अल्युमिनियम, बोरान एंड सिलिकॉन। ठीक है। तो मैंने अभी कहा कि लिथियम का प्रॉपर्टी अपने फैमिली के सोडियम से नहीं मिलता है, बेरिलियम का अपने ग्रुप के मैग्नीशियम से नहीं मिलता है, बोरान का अल्युमिनियम से नहीं मिलता है। ये जो गंदा किया वो सही साफ कर दो, इरेज करो। लेकिन लिथियम का प्रॉपर्टी अपने पड़ोसी से मिलता है मैग्नीशियम से। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, अल्युमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन। इस लिथियम का प्रॉपर्टी अपने फैमिली के सोडियम से नहीं मिलता है, अपने पड़ोसी मैग्नीशियम से मिलता है। बेरिलियम का अल्युमिनियम से मिलता है, बोरान का सिलिकॉन से मिलता है, डायगोनल एलिमेंट से। This similarity in property is called diagonal relationship. This similarity in property is called diagonal relationship. है ना? अभी पढ़ा आपने, अपने ग्रुप के मेंबर से प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, अपने पड़ोसी से मिलता है। नेक्स्ट ग्रुप और नेक्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, उससे सिमिलरिटी है प्रॉपर्टी में। ये तीन एग्जाम्पल हैं। इसी के लिए आप सुने हुए गाना था कि फिल्म में, अपनों पे सितम गैरों पे रहम में जाने वफा ये जुर्म ना कर। अपनों पे सितम, अपने फैमिली से कोई मेल जोल नहीं, और गैरों पे रहम, पड़ोसी से बहुत मेल जोल है ना? अपने फैमिली से दोस्ती नहीं है और पड़ोसी से बहुत दोस्ती है, क्या बोलेंगे इसको? अपनों पे सितम गैरों पे रहम, ए जाने वफा ये जुर्म न कर। कहाँ लागू होता है? लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन पर। ये जो प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। बट वी हैव ओनली 3 एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। 3 ही एग्जांपल हैं ऐसे जहां डायगोनल रिलेशनशिप दिखता है। कहां कहां? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का अल्युमिनियम से, और बोरॉन का सिलिकॉन से। Resemblance in properties of elements of next group and next period of PT is called diagonal relationship. Now again, what is the reason? कारण क्या है? अभी हम बताए थे आपको,
प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होता है, क्या बताए थे, कोई बोलो। अभी बताए कुछ मिनट पहले प्रॉपर्टी। चार्ज बाय Yes. Properties of elements depend on charge by radius ratio. So they have same charge by radius ratio. Charge नहीं, radius भी नहीं. लिथियम पर +1 चार्ज है, Mg पर +2 चार्ज है, but charge by radius ratio is same. So keep in mind, diagonal relationship is shown because they have same charge by radius ratio. Why elements show diagonal relationship? Because of same charge by रेडियस रेशियो charge by radius ratio. और ये 3 ही एग्जांपल हैं इसके, कौन कौन, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन एंड सिलिकॉन. चौथा कोई एग्जांपल नहीं है. एनी क्वेश्चन? नहीं. चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे. तीसरा टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट है पेयर ऑफ s electron becomes inert and do not take part in bonding. ये कहाँ होता है? ये होता है ग्रुप 13, 14 और 15 में. बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. ओके. ग्रुप 13 में है बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. इनका कॉन्फ़िगरेशन है S2P1. S2P1. So they are expected to show valency 3. बोरॉन की वैलेंसी 3, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, गैलियम की 3 and 1, इंडियम 3 and 1, थैलियम only 1. देखो गौर से क्या हो रहा है. इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 3 1 3 1, इसका वैलेंसी ओनली 1. हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बोरॉन में S2P1 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों बॉन्डिंग में भाग लिया. अल्युमिनियम में तीनों भाग लिया. गैलियम में कभी 3 लिया, कभी 1 लिया. इसका मतलब कौन नहीं लिया भाग, बताओ. S2P1 कॉन्फ़िगरेशन था, कभी वैलेंसी 3 हुआ, कभी 1 हुआ. कौन इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया? s ऑर्बिटल वाला. S2 भाग नहीं लिया. यस, s ऑर्बिटल वाला ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी. जब पार्ट लिया तो 3, नहीं लिया तो 1. इंडियम में भी 3 1 और थैलियम में ओनली 1. मीन्स व्हाट? S orbital has not taken part in bond formation. S orbital bond formation में भाग नहीं लिया. ये क्या हो गया? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया towards bonding. This is called inert pair effect. Inertness of a pair of s electron to take part in bonding is called inert pair effect, and it is observed in heavier element of group 13, 14 and 15. फिर 3 ही ग्रुप में है ऐसा एग्जांपल.
आई बात समझ में? अब आपसे कोई पूछे व्हाई थैलियम शो वैलेंसी 1 ओनली, क्या कहेंगे आप? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाई थैलियम शो वैलेंसी 1 ओनली? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाई गैलियम इंडियम शो वेरिएबल वैलेंसी 3 and 1? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑलवेज है, इसमें कभी है कभी नहीं है। ठीक है, सेम गेस करो, ग्रुप 14 में क्या होगा? कार्बन की वैलेंसी 4, सिलिकॉन का 4, जर्मेनियम 4 2, टीन का 4 2, लेड का केवल 2। क्या देख रहे हो? एज यू गो डाउन वैलेंसी डिक्रीजेस। s इलेक्ट्रॉन इसका है s2p2। ग्रुप 14 का कॉन्फ़िगरेशन s2p2, it has 4 electron. In carbon all the 4 electron take part in bonding, valency 4. In silicon all the 4 take part in bonding, valency 4. In germanium sometimes s electron becomes inert, valency 4 and 2. In tin sometimes s becomes inert, valency 2. And in lead all time becomes inert. मतलब जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, फास्फोरस की 5 and 3, आर्सेनिक 5 and 3, एंटीमनी 5 and 3, बिस्मथ ओनली 3। सेम inert pair effect. As you go down, valency decreases by 2 units, and this is due to inert pair effect. ठीक है, तो याद रखो valency of thallium, lead and bismuth is 2 units less than its group valency. This is due to inert pair effect. Gallium, indium, germanium, tin, arsenic and antimony show variable valency due to inert pair effect. Sometimes s electron becomes inert. Okay? वैसे वैलेंसी यहाँ भी वेरिएबल है, फास्फोरस में भी, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। वो अभी बताया कुछ देर पहले, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वो है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का यही है, ये 6 एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी और ये 3 एलिमेंट की लोअर वैलेंसी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? तो मैं इसको मिटाऊं और 2 लाइन लिखता हूं, आप लोग भी लिखिए। पहला लाइन क्या है? पहला लाइन है थैलियम, lead and bismuth show valency 2 units less than their what? Group valency due to inert pair effect. ठीक है, थैलियम की वैलेंसी 1, लेड का 2 और बिस्मुथ का 3 है, जो उसके ग्रुप वैलेंसी से 2 यूनिट कम है। ये क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये गैलियम 3 1, जर्मेनियम 4 2, आर्सेनिक 5 3, इंडियम 3 1, टीन 4 2, एंटीमनी 5 3। So variable valency
ड्यू टू इनर्ट Not pair effect. पेयर इफेक्ट। ठीक है। और थर्ड लाइन है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज shown by heavier elements of group 13, 14 and 15 only. ग्रुप 13, 14 और 15 के जो एलिमेंट हैं वही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं और दूसरा कोई एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता है। अब तुम लोग पूछो, पूरे पीरियोडिक टेबल से किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। है क्वेश्चन? सर एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट कीजिए।